ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو آج وہ ہمیں دینے والا ہے، اور اس کا کلام جب جب اور جس روپ میں آتا ہے وہ ہمیشہ اثر کرتا ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ آج بھی خدا کا کلام آپ کی زندگی میں اثر کرے گا۔ ہم جانتے ہیں نیا سال جو تھا، جو کہ 8واں دن تھا، کرسمس کے بعد سے اگر ہم کاؤنٹ کریں 8واں دن تو وہ نئے سال کا دن بنتا ہے۔ پیدائش کے بعد سے 8ویں دن کے متعلق جب ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ختنے کا ذکر ملتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 8ویں دن پھر اس کا ختنہ ہوا۔ اور اگر ہم نئے عہد نامہ میں رومیو کے نام جو خط ہے اس کا 2 باب اور اس کی 28 آیت پڑھیں تو کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ میرے عزیزو، جیسے کہ ہم نے پڑھا کلام مقدس میں کہ شریعت کے مطابق یہودیوں کو یہ حکم ملا تھا خدا کی طرف سے کہ جو یہودی قوم ہے وہ اپنے آپ کو دوسری قوموں سے الگ رکھنے کے لیے، مختلف رکھنے کے لیے، جس سے ان کی پہچان ہو سکے کہ یہ یہودی ہے، یہ یہودی قوم سے ہے، ان کو ایک نشان دیا گیا تھا، اور وہ نشان تھا ختنہ، اور یہ لازمی قرار دیا گیا اس کو۔ اور تمام یہودی جو تھے وہ شریعت کے اس قانون کو اپنی زندگی میں پورا کرتے تھے، اور جب بھی ان کے ہاں بچہ ہوتا، بیٹا ہوتا، تو اس کا ضرور ہی ختنہ جو ہے وہ کیا جاتا۔ بالکل اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں دن ان کا ختنہ ہوا اور کلام کو یعنی کہ شریعت کو پورا کیا گیا۔ ہاللیلویا۔ یہودی جو لوگ تھے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ وہ خدا کی خاص قوم ہے، جس پر خدا خاص دھیان دیتا ہے، جس کو خدا دوسری قوموں سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا کی وہ پیاری اور لاڈلی قوم ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کریں لیکن ہم پھر بھی خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ اور ختنے کے اوپر بھی وہ فخر کرتے تھے۔ یہودی قوم جو ہے آج بھی اگر ہم یہودی قوم کے متعلق جانیں، سیکھیں، تو سب سے اول بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، یہودی لوگ اپنے مذہب میں کسی کو آنے کی نہ دعوت دیتے ہیں اور نہ ہی آنے دیتے ہیں، نہ ہی وہ کسی کے مذہب میں جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کے مذہب کو اپنے اندر شامل ہونے دیتے ہیں۔ وہ کسی کو بھی نہیں دعوت دیتے کہ آپ یہودی بن جائیں، آپ یہودی مذہب اختیار کر لیں، اور اس بات پر وہ فخر کرتے ہیں، اس بات پر وہ گھمنڈ کرتے تھے کہ وہ مختون ہے، وہ خدا کی وہ مختون قوم ہے جو مرضی کرے لیکن وہ بچ جائے گی، کیونکہ خدا اس سے خاص پیار کرتا ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر بھی آتا ہے جب خدا بار بار بنی اسرائیل قوم کو بچانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ جا کر ان کو بتائیں کہ وہ غلط راہوں پر چل پڑے ہیں، وہ اپنی بری راہوں سے پھریں، واپس لوٹیں، توبہ کریں، بتوں کی بجائے وہ میری عبادت کریں اور وہ میری طرف رجوع لائیں۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو بنی اسرائیل قوم کی بڑی فکر بھی رہی ہے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب خدا نے زمین پر اپنے بیٹے کو بھیجا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کو، اور ہم نے اس بات کے متعلق سیکھا، جانا کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے
تو وہ پھر کسی ایک خاص امت کے لیے، کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے، وہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے اس زمین پر آئے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والا، جو کہ نبیوں میں سے سب سے بڑا نبی تھا، جس نے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیے جاتا ہے۔ وہ کسی ایک قوم نہیں، کسی ایک امت کے گناہوں کو نہیں، بلکہ وہ دنیا کی قوموں، بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کو وہ اپنے اوپر اٹھا لیے جاتا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آتے ہیں تو بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ خدا کا جو محبت، پیار جو ہمیں ایک خاص قوم، ایک خاص امت کے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے نظر آتا ہے، وہ محبت، وہ پیار یسوع مسیح کی صورت میں پوری دنیا کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ اور خدا اپنے بیٹے کو پھر پوری دنیا کے لیے زمین پر بھیجتا ہے، تاکہ باقی قومیں بھی جو بت پرست ہیں، جو گناہوں میں، جو طرح طرح کے گناہوں میں گھری ہوئی ہیں، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی نجات پا جائیں۔ خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر آتے ہیں اور جب وہ اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پھر خدا کے اسی منصوبے کو، جو ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ سب قوموں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق تھا، خداوند یسوع مسیح نے ان سب کے لیے نجات کا جو پیغام تھا وہ ظاہر کیا، وہ ان کو دیا تاکہ وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی نجات پا جائیں۔ یہودی جو تھے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ یہودی ہے وہ اور لوگوں کو شریعت کی تعلیم دے، کلام کی تعلیم دے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ جو ایک خاص چیز لے کر آتے ہیں، جو کہ ہمیں اس دور میں جتنے بھی فقی، فریسی اور شرع کے عالم اور تمام جو ریلیجیس لیڈرز جو ہمیں نظر آتے ہیں اس دور میں، ان کے اندر وہ چیز موجود نہیں تھی جو خداوند یسوع مسیح کے اندر تھی۔ وہ خدا کی محبت تھی، وہ ترس تھا جو خدا کی محبت ہمارے اندر پیدا کرتی۔ اور یہودیوں کے اندر شریعت تو تھی، کلام تو تھا، لیکن ان کے اندر خدا کی وہ محبت نہیں تھی جو اور قوموں کو خدا کی بادشاہت میں آنے دیتی، بلکہ وہ نہ کسی کو آنے دیتے تھے یہودی مذہب میں، اور نہ ہی وہ خود کسی کے مذہب کو قبول کرتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے نجات کے اس پیغام کو اور قوموں تک بھی پہنچایا تاکہ وہ بھی خدا کی بادشاہت میں شامل ہو سکیں۔ ایک حوالہ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں سے پڑھیں، لوکا 10 باب اور اس کی 30 آیت، تو لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں کہا، ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں آ کر تجھے ادا کروں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوں میں گھر گیا تھا، تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا، خداوند یسوع مسیح ایک ایسے شخص سے مخاطب ہے۔ اگر ہم پچھلی آیات میں پڑھیں تو ہمیں شرع کا ایک ایسا عالم نظر آتا ہے
जो खुदावन यीशु मसीह से क्वेश्चन करता है और वो खुदावन यीशु मसीह से कहता है कि मैं कैसे हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकता हूँ। और खुदावन यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तूने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है, शरीयत में क्या लिखा है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि शरीयत में क्या लिखा है, सारे अहकाम मैंने जाने हैं, मैंने पढ़े हैं। और वो ये सब कुछ अपने आप को रास्तबाज जाहिर करने के लिए बयान करता है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जब उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरा पड़ोसी जो है वो कौन है, क्योंकि जो पहला हुक्म है वो खुदा की इबादत करना है पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल और पूरी ताकत से। और दूसरा हुक्म जो है जिसको खुदावन यीशु मसीह ने पहले हुक्म के बराबर कर दिया वो था अपने पड़ोसी से अपनी ईमानदार मोहब्बत करना। और ये शरक आलम खुदावन यीशु मसीह से सवाल पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। और खुदावन यीशु मसीह फिर एक तमसील बयान करते हैं और उस तमसील में वो बताते हैं एक शख्स जो कि यरूशलेम से यरीहो की तरफ सफर कर रहा है और रास्ते में उसको कुछ डाकू घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उससे पैसे छीन लेते हैं, उसके कपड़े फाड़ के उसको मारते हैं, उसको जख्मी करके अधमुआ करके उसको छोड़ देते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वहां से एक काहिन गुजरता है और वो काहिन उसको देखकर कतरा कर चला जाता है, फिर एक लावी भी वहां से गुजरता है और वो लावी भी उस अधमुए शख्स को देखकर कतरा कर परे से चला जाता है। ये दोनों शख्स, ये काहिन और ये लावी, काहिन भी और लावी भी, इन दोनों का तल्लक हैकल के साथ, कहानत के साथ मंसूब है। ये जो काहिन है जो खुदा के कलाम को सीखते और कौम को सिखाते थे, उनके अंदर सारी शरीयत होती थी, शरीयत के वो सारे कवानीन उन्होंने सीखे होते थे जो वो कौम को भी सिखाते थे। लेकिन उनके अंदर शरीयत होने के बावजूद, कलाम होने के बावजूद एक चीज जो नहीं थी वो खुदा की मोहब्बत नहीं थी जो कि तरस पैदा करती है। उस काहिन ने जब उस जख्मी शख्स को देखा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो कतरा कर चला गया क्योंकि उससे उस पर तरस नहीं आया। एक लावी भी वहां से गुजरता है और लावी भी जो है ये भी कहानत के साथ मंसूब थे। हैकल का, एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम होता था वो सब लावी कबीला के जिम्मे होता था। और ये भी चर्च के साथ, हैकल के साथ मंसूब रहते थे, खुदा की हजूरी के साथ मंसूब रहते थे। इनको भी खुदा के कलाम का पता था, खुदा के अहकाम, खुदा के कवानीन इन्होंने सीखे हुए थे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वो लावी भी जब वहां से गुजरता है तो वो उस जख्मी शख्स को देखकर कतरा कर गुजर जाता है। कलाम होने के बावजूद, शरीयत होने के बावजूद, चर्च रेगुलर जाने के बावजूद और चर्च में सारे इंतजामात करने के बावजूद, बड़े बड़े काम करने के बावजूद भी जो चीज उस लावी के अंदर नहीं थी वो खुदा की मोहब्बत थी जो कि उस लावी के अंदर नहीं थी। और ये मोहब्बत तरस पैदा करती है। और इन दोनों के अंदर जो चीज नहीं थी वो क्या थी? तरस। क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत नहीं थी, कलाम तो था लेकिन मोहब्बत नहीं थी, और मोहब्बत जो है वो तरस पैदा करती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है सामरी के तल्लुक से, वो सामरी एक ऐसी कौम थी जिससे यहूदी कौम अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। यहूदी सामरियों से मेल जोल नहीं रखते थे, सामरियों को अच्छा नहीं समझते थे। और लिखा कि जब वो सामरी वहां से गुजरा और अपने गधे के ऊपर था वो, लेकिन जब उसने उस जख्मी शख्स को देखा तो बाइबल में लिखा है कि वो उतरा और उसने उस शख्स के जख्मों के ऊपर तेल और मैं को बांधा। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो था वो तरस था जो कि खुदा की मोहब्बत से आता है। जो पादरी था, जो काहन था, जो बिशप था, जो चर्च में बड़ा एक्टिव मेंबर नजर आता है, हर वक्त जो चर्च में नजर आता है ये काम करते हुए भी, वो काम करते हुए भी, लेकिन जहां पर खुदा की मोहब्बत को रिप्रेजेंट करना था, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करना था, वहां वो कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी
जो गैर कौम से था, जिससे यहूदी नफरत करते थे, वही सामरी वो उतरा और उसने उस यहूदी, उस जख्मी शख्स को पकड़ा, उसको उठाया, उसके जख्मों के ऊपर तेल लगाया, मैं लगाई, उसको बांधा और फिर लिखा है कि उसको वो ले गया अपने गधे के ऊपर सवार करके ऐसी जगह पर जहां पर उसका इलाज मुआवजा, उसकी केयर हो, ताकि वो उसके जो जख्म है वो सही हो सके। और वो शख्स जो मरने के करीब है, मुसलसल जख्मी था, ब्लीडिंग की वजह से मरने वाला था, उसने उसको उठाया, पकड़ा और ले गया ताकि वो बच जाए। मेरे अजीजों, सिर्फ इस सामरी के अंदर अगर हम देखें तो हमें 4 चीजें नजर आती हैं, क्योंकि खुदा की जो मोहब्बत है, जो हमारे अंदर तरस पैदा करती है, और खुदा की मोहब्बत जिसने इस सामरी के अंदर तरस पैदा किया, और उस सामरी ने 4 चीजों का इस्तेमाल किया। पहले नंबर पे उस सामरी ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया, अपनी तवानाई, अपनी कुव्वत इस्तेमाल की। उसने उसे पकड़ा, उसे उठाया, उसके जख्मों के ऊपर तेल जो है वो लगाया, मैं लगाई, उसको बांधा। पहली चीज इस्तेमाल की वो थी उसकी तवानाई, उसकी एनर्जी। दूसरी चीज थी उसके वसाइल, जो कुछ उसके पास था उसने वो इस्तेमाल किया ताकि इसका दर्द जो है वो कम हो, इसकी तकलीफ जो है वो कम हो, और ये बच जाए, इसकी ब्लीडिंग रुक जाए और ये हलाक ना हो। तीसरी चीज जो उसने इस्तेमाल की वो हमें नजर आती है दौलत। जब वो लेकर जाता है उसको एक ऐसी जगह पर जहां पर उसकी केयर का इंतजाम किया जाता है, और वो भुटियारे को पैसे देता है और उसे कहता है कि तूने इसका ख्याल रखना है, इसकी केयर करनी है, और मैं कल फिर आऊंगा, ये कुछ पैसे मैं तुझे दिए जाता हूं, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा और तू इसकी केयर कर, और अगर इस पर कुछ खर्चा ज्यादा आएगा तो मैं कल आऊंगा और मैं तुझे कुछ पैसे और दे दूंगा जो तू इस पर खर्च करेगा। उसने पहली चीज जो इस्तेमाल की अपनी तवानाई, अपनी एनर्जी। दूसरी चीज रिसोर्सेज, अपने वसाइल उसने इस्तेमाल किए, जो कुछ उसके पास था उसको वो बुरे काम, उसको वो इस्तेमाल में लाया। तीसरी चीज उसने अपना पैसा इस्तेमाल किया, और चौथी चीज और बड़ी अहम चीज अपना वक्त इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो वक्त शायद अगर वो अपनी जॉब, अपने कारोबार में लगाता तो वो कुछ और पैसे जो है वो अर्न कर सकता था, लेकिन उसने अपना वो कीमती वक्त उस शख्स के ऊपर इस्तेमाल किया, अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी, अपने वसाइल, अपना पैसा, अपना वक्त उस शख्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया कि ये हलाक होने से बच जाए, ये शिफा पा जाए, ये कहीं हलाक ना हो जाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु से उस शरह के आलम को पूछते हैं कि अब तू बता कि उन तीनों में से कौन इस शख्स का पड़ोसी जो है ठहरा, और वो कहता वो जिसने उसकी केयर की, जिसने उसे पकड़ा, उसके उठाया, उसको बचाया। और खुदावंद यीशु मसीह फिर उसे कहते हैं कि हाँ, तू भी जा और तू भी ऐसा ही कर। और आज खुदावंद यीशु मसीह उस शरह की आलम से ऐसा नहीं कहता, बल्कि आज खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये कहता है कि तू भी ऐसा ही कर। अपने पड़ोसी के साथ, अपने अजीजों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो धुतकारे हुए लोग हैं, जिनसे नफरत की जाती है, जिनसे किनारा किया जाता है, जिनसे अवॉइड किया जाता है, जिनको कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जिनसे मेल मिलाप नहीं रखा जाता, ऐसे लोगों के अंदर मैंने और आपने जाना है, और हमने उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आना है। ऐसी जगह पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पर, ऐसी जमायत में, ऐसे चर्च में हमने उनको लेकर आना है जहां पर उनकी खबरगिरी की जाए ताकि वो हलाकत से बच जाएं। उसके लिए हमें आज खुदा चाहता है कि हम भी वो 4 चीजें इस्तेमाल करें, अपनी एनर्जी,
अपने वसाइल, अपनी दौलत, अपना वक्त, जो उस सामरी ने जो कि गैर कौम से था, उसने वो सब चीजें इस्तेमाल की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तरस था, और ये तरस खुदा की मोहब्बत से पैदा होता है। ये तरस कलाम को हिफज करने से नहीं, बाइबल को 4 दफा 5 दफा या 10 दफा पढ़ जाने से, हिफज कर जाने से नहीं आता, बल्कि ये जो तरस है ये खुदा की मोहब्बत से आता है। और जब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाती है तो फिर हम लफ्जी यहूदी नहीं रहते, लफ्जी मखतून नहीं रहते, बल्कि पालूस जो है वो दिल के खतने की बात करता है। और खतना जो होता था यहूदी कौम में, वो जिस्म को काटने का होता था, जिस्म को जिस्म से काटा जाता था। और आज खुदा चाहता है कि हम भी सबसे पहले अपने दिल का खतना करें, अपने अंदर से उन सब कमजोरियों को, उन सब बातों को, उन सब बुरी आदतों को खत्म करें, काट डालें, अलग करें, ताकि खुदा की मोहब्बत, खुदा का तरस हमारे अंदर जो है वो आए, और हम खुदा के उस तरस को, उस मोहब्बत को रिप्रेजेंट करें और लोगों को उठाएं, ऐसे लोगों तक पहुंचे जो इस वक्त अधमुए हैं, ऐसे लोगों तक पहुंचे जो जख्मी हैं, जो इब्लीस के अटैक के नीचे हैं, जिनके ऊपर इब्लीस के अटैक हैं, जो झूठ के अटैक के नीचे हैं, जो नशे के अटैक के नीचे हैं, जो ऐब जोई के अटैक के नीचे हैं, जो तरह तरह के गुनाहों के अटैक के नीचे हैं। हमने ऐसे लोगों से अवॉइड नहीं करना, ऐसे लोगों से कतरा कर गुजरना नहीं, बल्कि हमने उनको पकड़ना है, उनको गले लगाना है, उनको उठाना है, और अपनी उन सब चीजों को जो खुदा ने हमें दी है, अगर तवानाई दी है, एनर्जी दी है, तो वो हमने इस्तेमाल करनी है। अगर वसाइल दी हैं तो वो हमने इस्तेमाल करने हैं। अगर दौलत दी है तो वो हमने इस्तेमाल करने हैं। अगर खुदा ने वक्त दिया है तो वो हमने इस्तेमाल करने हैं, ताकि वो हलाक ना हो जाए, वो बच जाए, वो उस अबदी हलाकत में ना जाए। खुदा ने अगर मुझे बचा लिया है तो मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं भी आज ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करूं जो अधमुए हैं, जो हलाक हो रहे हैं, जो तारीकी में हैं, जो गुनाह के कब्जे में हैं। और ये तब मुमकिन है जब मेरे अंदर खुदा की मोहब्बत होगी, खुदा का तरस होगा। मेरे घर में जो बाइबल पड़ी है, मेरे कमरे में जो मसीही कैलेंडर है, और जो बाइबल की जो आयात हैं, वो मेरे अंदर तरस मोहब्बत पैदा नहीं कर सकती। वो लोगों को तो मुतासर कर सकती है, वो लोगों को तो बेवकूफ बना सकती हैं। जब खुदा मेरे अंदर आएगा तो मेरे अंदर उसकी मोहब्बत आएगी, उसका तरस आएगा। और जब तरस आएगा तो मैं जरूर देखकर रुक जाऊंगा, मैं कतरा कर परे होकर चला नहीं जाऊंगा। उस काहिन की तरह, उस प्रीस्ट, उस पादरी की तरह, उस लावी की तरह, जो कलाम को तो बहुत जानते थे, जो कलाम को तो बहुत समझते थे। उनके घरों में बड़े बड़े तुमार पड़े होते थे, हैकल में तुमार पड़े होते थे, बाइबल पढ़ी होती थी, सहीफे पढ़े होते थे, जिनको उन्होंने एक दफा नहीं कई दफा पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कतरा कर गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सहाइफ, वो तुमार, वो शरीयत उनके अंदर मोहब्बत पैदा नहीं कर सकती। और जब तक मोहब्बत नहीं आएगी उस वक्त तक तरस नहीं आएगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है और मुझे मोहब्बत की जरूरत है। जब मेरे अंदर खुदा आ जाएगा, जब मेरे अंदर मोहब्बत आ जाएगी, तो मैं ऐसे दोस्तों से, ऐसे पड़ोसियों से, ऐसे लोगों से कतराऊंगा नहीं, उनसे नफरत नहीं करूंगा, उनकी ऐब जोई नहीं करूंगा, उनको छोड़ नहीं दूंगा, बल्कि मैं उनको उठाऊंगा, उनकी तसल्ली का सबब बनूंगा, उनकी हौसला अफजाई करूंगा, ताकि किसी ना किसी तरीके से वो उस दलदल से, वो उस गुनाह से, वो इब्लीस के उन अटैक्स के नीचे से बाहर निकल आए और एक बड़ी हलाकत से वो बच जाए। हालेलुया। आज खुदा
मुझसे और आपसे यही तवक्को करता है। वो हमें रवायती मसीह नहीं देखना चाहता जो सिर्फ नारे लगाने वाले हैं, जो सिर्फ बड़े बड़े गीत गाने वाले, बड़े बड़े नारे लगाकर लोगों को मुतासर करने वाले हैं। खुदा जो है वो हमें लफ्जी यहूदी नहीं, लफ्जी रवायती मसीही नहीं, बल्कि बातनी मसीही चाहता है। वो हमें ऐसा बिलीवर देखना चाहता है जिसके अंदर उसकी मोहब्बत है, जिसके अंदर उसका प्यार है, जो हमारे अंदर तरस लेकर आता है, जिससे हम घुटनों पे जाते हैं और शिफायत करते हैं उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए, उन पड़ोसियों के लिए जिनको हम देखते हैं बुरे काम करते हुए, बुरी बातें करते हुए, बुरे अमाल हम उनकी जिंदगी में देखते हैं। हम उनके लिए फिर घुटनों पर जाते हैं और शिफायत करते हैं, और जब भी मौका मिलता है हम खुदा के कलाम से उनकी तसल्ली करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो खड़े हो सके, वो हलाकत से बच जाए, वो एक बड़ी और अबदी हलाकत में ना जाए। हालेलुया। आज आए, एक वादा करें खुदावन से और कहें, खुदावन मैं इस मोहब्बत को अपने अंदर रिसीव करना चाहता हूँ। मैंने शरीयत को तो सुन लिया है, मैंने कलाम को तो सीख लिया है, लेकिन ऐ खुदा मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर तेरी मोहब्बत आए खुदा, मेरे अंदर तेरा प्यार आए, तेरा तरस आया खुदा, ताकि मैं उन लोगों को जो अधमुए हैं, जिनको इब्लीस ने जख्मी कर छोड़ा है, जिनको इब्लीस ने अटैक करके अधमुआ फेंक दिया है, जो गुनाहों में है, तारीकी में है, पाप की हालत में है, आया खुदा मेरे अंदर अपना प्यार, अपनी मोहब्बत पैदा कर रहा है खुदा, मेरे अंदर वो तरस पैदा कर जो उस सामरी के अंदर था। मेरे अंदर पादरी वाली मोहब्बत नहीं चाहिए, बल्कि तेरी मोहब्बत चाहिए खुदा, जो रोक देती है ताकि उन लोगों को उठाया जाए खुदा। ऐ खुदा मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर तेरा प्यार आए, तेरा तरस आया खुदा, ताकि मैं ऐसे लोगों को सहारा देने का सबब बनूं है खुदा, ताकि वो भी बच जाएं, वो भी निजात पा जाएं। आए अहद करें खुदा के साथ कि खुदाउन मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मैं उन लोगों को उठाऊंगा, उन लोगों को खड़ा करूंगा